फिर हमको बता देना, मेरा अपडेट होगा, फिर हम इस जीपीएस को और रोहित को सबको बताते हैं, नहीं तो फिर रोक देगा तो फिर तुम्हारा काम नहीं होगा। 93 मेरा जी 93 कहाँ से बोल दिए तुम? 870 906 7942। थैंक यू। नाम क्या है मेरा? चैनल 19 पे चलता है। पता नहीं 16 चेहरे से तो वाकिफ हूं। चेहरे से वाकिफ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शालिनी बस शालिनी दीक्षित है, वो मैडम जी को आप देखे हैं। अच्छा। अब हमको बस व्हाट्सएप कर देना कि मेरा सीपीएलटी का मार्क्स अपडेट हो गया, उसके बाद हम इन लोग का मैम इनको बाहर के दीजिए। थैंक यू। इनको बाहर के दीजिए जल्दी से। हो गया क्लास। सर आप स्टार्ट करिए, वो हम उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss Block 3, Financing of Working Capital. I have already discussed in previous class of Unit 8, 9 and 10 of Block 3. So remaining one block I will discuss today, that is other sources of short-term finance. Unit 11, other sources of short-term finance. The objective of this units are to discuss the sources of short-term finance other than bank credit and trade credit to meet the working capital needs. And second objective is to highlight the framework of rules and regulations prescribed by the authorities regarding this non-bank source of finance. So important objective of this unit, a structure of the unit are introduction, public deposits, commercial paper, intercorporate loans, bonds and debentures, factoring of receivables. So introduction of short-term financing. You know very well about short-term financing. Short-term financing time period is about below 1 year, within 12 months. So short-term financing deals with raising of money required for a shorter period, that is period varying from a few days to 1 year. There are, however, no rigid rules about the term. It may sometimes exceed 1 year, but still be called as short-term finance. In previous class, I have discussed about the money market. So the instrument of money market are also in short-term period, like commercial bill, commercial paper, certificate of deposit, treasury bill, call money market, etc. So short-term financing is very important for working capital, because working capital is also short-term. So commercial paper is a short-term financing technique, instruments. Commercial paper issued by the public limited company. It is unsecured.
Unsecured means at the time of liquidation, सबसे लास्ट में आपको पेमेंट मिलेगा. That is unsecured. Secured means at the time of liquidation, जो प्रायोरिटी राइट रखता है सबसे पहले पाने का, कंपनी के सारे एसेट्स को सेल आउट कर दिया जाता है, एंड देन जो रिकवरी होता है उससे सबसे पहला जो पेमेंट जाएगा वो सिक्योर्ड का जाएगा. दैट इज डिवेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा. What unsecured means at the time of liquidation, जो सबसे लास्ट में पेमेंट आपका होगा. That is equity is also unsecured. Commercial paper is unsecured. All working capital except that part of it which it is necessary for holding a minimum level of raw materials, stores, finished goods in an industry. It's short-term capital. It should be noted that the requirement of regular or permanent working capital for the business should be financed through sources of medium and long-term finance. I have discussed in previous class types of working capital. There are 4 types of working capital. On the basis of time, they have 2: fixed working capital and fluctuating working capital. And on the basis of value, gross working capital and net working capital. Gross working capital means overall investment in the current asset of the organization is called gross working capital. That means आप जब किसी कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट का एक पार्ट लायबिलिटीज होता है और एक पार्ट एसेट होता है. तो एसेट साइड में जो टोटल करेंट एसेट्स है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. एंड नेट वर्किंग कैपिटल, इट इज द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी. In mathematical equation form, current assets minus current liability is called net working capital. On other hand, on the basis of time, fixed working capital and fluctuating working capital. Fixed working capital, this is fixed over the period. Whether company run or not, या तो कंपनी आपकी चल रही है या नहीं चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है आपको पे करना होगा. यू हैव टू पे फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल एट एनी कॉस्ट. सो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, एम्प्लॉइज का जो सैलरी है वो आपको देना होगा, चाहे आपकी कंपनी बंद हो या ओपन हो, आपको पे करना पड़ेगा. रेंट, जो मंथली रेंट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल आपको पे करना होगा. यू हैव टू पे, चाहे आपकी एस्टेब्लिशमेंट बंद है या खुला है, आपको पे करना होगा. एंड सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल बिजनेस ज्यादा सीजनल बिजनेस, जैसा आप देखते होंगे, सीजनल जो बिजनेस होता है, जैसे वुलन मार्केट हो गया, वुलन इंडस्ट्री हो गया, है ना. तो सीजनल बिजनेस में होता क्या है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग द सीजन, बिकॉज वहां पे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको वर्किंग कैपिटल को ज्यादा पे करना होता है. सो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, it may vary according to the demand of your product. आपके प्रोडक्ट का जैसे जैसे डिमांड होगा वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ता है, और डिमांड घटता है, आपका डिमांड नीचे हो जाता है. डिमांड जैसे ही नीचे जाएगा, वर्किंग कैपिटल का नीचे आना तय हो जाता है.
So these are the types of working capital on the basis of value and on the basis of time. Public deposit. Next topic is public deposit. You can see on the screen, a public deposit refers to the unsecured deposits invited by companies from the public mainly to finance working capital needs. A company wishing to invite public deposits makes an advertisement in the newspaper. Any member of the public can fill up the prescribed form and deposit the money with the company. The company in return issue a deposit receipt. This receipt is an acknowledgement of debt by the company. तो पब्लिक डिपॉजिट दैट मीन्स पब्लिक से आप फंड को रेज कर सकते हैं, लेकिन यहां भी अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है. दैट मीन्स अनसिक्योर्ड मीन्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आपके पास वो प्रायोरिटी राइट अवेलेबल नहीं है जो सिक्योर्ड के पास होता है. सिक्योर्ड को सबसे पहले पे किया जाएगा, अनसिक्योर्ड को बाद में पे किया जाएगा. सो पब्लिक डिपॉजिट इशू करने से रिलेटेड जो एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबल आप कब होंगे, कब उसको इशू किया जाएगा, क्या नॉर्म्स है, क्या एक्ट में बताया गया है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूं. एप्लीकेबिलिटी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. कंपनीज में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम बोथ मेंबर्स एंड द जनरल पब्लिक. मेंबर्स दैट मीन्स जो इक्विटी शेयर होल्ड किए हुए हैं, जिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो भी इक्विटी शेयर होल्ड किया है, दैट इज कॉल्ड मेंबर. तो ये मेंबर को भी इशू कर सकता है और जनरल पब्लिक को भी इशू कर सकता है. एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 73 to 76 of the Companies Act 2013 contains provisions regarding the acceptance of deposits that apply to all companies barring a few. Any banking company, non-banking financial companies as per the RBI Act 1934, any other company notified by the central government in consultation with the RBI. तो बैंकिंग कंपनी इसको पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, इशू कर सकती है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी कर सकती है, और एनी अदर कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, और वो भी कंसल्टेशन आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ ही करना होगा. सो एप्लीकेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कौन इशू कर सकता है वो मैटर करता है कि पब्लिक डिपॉजिट को कौन इशू कर सकता है, और इशू करने का क्या उसके पीछे क्या नॉर्म्स है, क्या आपका रूल्स है, दैट इज मैटर. नेक्स्ट टॉपिक ऑन द स्क्रीन, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. सेक्शन 73 as per the Companies Act 2013. There are a few conditions that have to be fulfilled in order for a company to accept deposits. They are: a resolution has to be passed in the general meeting. Second, a circular has to be issued to the members with the following details: a financial statements which includes trading and profit and loss account and balance sheet of the company, credit rating obtained by credit rating agency like Indian Credit Rating Agency, CARE, CRISIL, etc. Total number of depositors, the amount due to the depositor with regard to prior deposits, and the other particulars as may be prescribed. So यहाँ पे कोई भी इशू कर सकता है, बट उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो देखना होगा. उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होने चाहिए, रूल्स नॉर्म्स क्या होने चाहिए, वो एज पर द एक्ट होनी चाहिए.
क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग का कौन सा आपका रेटिंग चाहिए, A+ चाहिए, B+ चाहिए। अदर इंस्टीट्यूशन अपना रेटिंग अलग अलग कैटेगरी बेस पे प्रोवाइड करती है। अगर बहुत अच्छी कंपनी है A+, आपका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छा है तो A+ आपको मिलेगा, A++ भी होता है। तो डिफरेंट रेटिंग एजेंसी डिफरेंट तरीके के क्रेडिट को प्रोवाइड करता है, जो कि उसका परसेप्शन बिल्कुल अलग रहेगा। So other particulars as we may be prescribed. So next point is file a copy of the circular and the statements with the register at least 30 days prior to the issue of the circular. 30 दिन पहले आपको सर्कुलर इशू करने के रिलेटेड स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को आपको स्टेटमेंट के साथ इसको सेंड करना पड़ेगा, एक कॉपी को सेंड करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। Next, prohibition of acceptance of deposit, section 73, that means part ही है उसका। Next point is 20% of the total amount of deposits maturing in the following financial year to be deposited with a scheduled bank in a separate account, deposit repayment reserve account before the 30th April of every year। आपको डिपॉजिट जो भी लिए हैं आपका 20% वहां पे आपको शेड्यूल्ड बैंक में जमा करना होगा एवरी ईयर 30th अप्रैल को। ये नॉर्म्स है, ये रूल्स है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड ऑन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स और एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स, whether those deposits were accepted before or after the commencement of the act where there was a default on the part of the company and the company has made good of the same and a period of 5 years has passed since the default has been made good. So next point is, a security has to be provided for the deposit accepted, and where there is no security provided, such deposits will be shown as unsecured deposits in all documents pertaining to the deposits। मीन्स ये क्लियर मेंशन करना होगा कि ये जो डिपॉजिट है वो अनसिक्योर्ड है, ताकि पब्लिक ये समझ सके कि इसमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क अवेयर ज्यादा है। बिकॉज अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी डूब जाती है, तो वहां पे सबसे लास्ट में आपको पेमेंट मिलेगा। इवन अगर ये भी बोलना सही रहे कि अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। सो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड भी एक्ट में कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो करने होते हैं कंपनी को। जो भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट को इश्यू कर रही है उससे रिलेटेड कुछ नॉर्म्स को, कुछ रूल्स को आपको फॉलो करनी होंगी। आप एडवर्टीजमेंट में क्या रखेंगे, उसमें क्या कंटेंट रहेगा, एडवर्टीजमेंट का क्या ये रहेगा कंटेंट। तो द एडवर्टीजमेंट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नेमली नेम ऑफ द कंपनी। फर्स्टली, जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट इश्यू कर रही है उसका नाम होना चाहिए, नेम ऑफ द कंपनी। सेकंड, द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन मींस जब रजिस्टर्ड हुई है कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। incorporation date provided by the registrar of the company। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन रहता है कि किस डेट को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है। सी द बिजनेस कैरीड on by the company and its subsidiaries with the details of branches of units if any। डिटेल्स ब्रांच आपको देना पड़ेगा कि सब्सिडरीज आपकी कौन है, होल्डिंग कंपनी कौन है, कितने सब्सिडरीज कंपनी है, कितने ब्रांच ऑफ यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है, ये सारी डिटेल आपको उसमें मेंशन करना होगा। आप जानते होंगे कि होल्डिंग कंपनी दोज कंपनी विच हेल्ड 51% और मोर इक्विटी शेयर टू अनदर कंपनी। तो 51% या उससे अधिक इक्विटी शेयर अगर कोई कंपनी होल्ड करती है दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, एंड जिस कंपनी की इक्विटी शेयर होल्ड की है दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी।
नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीफ पार्टिकुलर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ब्रीफ में वहां पे देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। नेम्स, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपको मेंशन करना होगा, उनके ऑक्यूपेशन, उनके एड्रेस, उनको नेम को कोट करना होगा एडवर्टाइजमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्स for the 3 financial year immediately preceding the date of advertisement। जिस डेट को आप एडवर्टीजमेंट लॉन्च करेंगे, जिस डेट को आप रिलीज करेंगे एडवर्टीजमेंट को, जस्ट उसके पीछे का आपको 3 फाइनेंशियल ईयर का आपका प्रॉफिट शो करना होगा आफ्टर मेकिंग प्रोविजन ऑफ टैक्स, ताकि इन्वेस्टर ये जान सके कि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, आपकी कंपनी की स्टेबिलिटी कैसी है, तभी वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। दैट मीन्स ये फेयर प्रैक्टिस है, जिससे कि एक इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है आपकी कंपनी में, कंपनी को जानने का कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे या ना करे। नेक्स्ट पॉइंट इज डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड ईयर्स। यानी आपने डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया है ये भी आपको एडवर्टीजमेंट में मेंशन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि प्रीवियस में आपने डिविडेंड का क्या रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रही है, ये भी आपको एडवर्टीजमेंट में मेंशन करना रहेगा। क्योंकि डिविडेंड पे आउट जितना ज्यादा होगा दैट मींस वो कंपनी उतनी अच्छी कंपनी है, डिविडेंड जितना लो है दैट मींस उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज a summarized financial position of the company as in the 2 audited balance sheets immediately preceding the date of advertisement in the prescribed form। तो यहां पे आपको फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट, 2 ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको यहां पे सबमिट करना होगा। समराइज फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना होगा, एडवर्टाइजमेंट में दिखाना पड़ेगा कि हमारे बैलेंस शीट का पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ये है, हमारे पास इतनी लायबिलिटीज स्टैंड कर रही है और इतने एसेट्स हमारे पास स्टैंड्स है, वो भी ऑडिटेड होना चाहिए बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज द अमाउंट व्हिच द कंपनी कैन रेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स अंडर these rules and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year। Next point is a statement to the effect that on the day of the advertisement, the company has no overdue deposits other than the unclaimed deposits, or a statement showing the amount of such overdue deposit as the case may be, and last one is a declaration as prescribed under the rules। तो ये सारे फैक्टर्स, सारे स्टेटमेंट्स आपको एडवर्टीजमेंट में कोट करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ये सारे नॉर्म्स को आपको फॉलो करने होंगे जब भी आप पब्लिक डिपॉजिट को इशू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। हाउ टू रजिस्टर? So first point, every company accepting deposits is required to keep as its registered office one or more registers in which the following particulars about each depositor are to be entered। जितनी भी कंपनी आपको इशू कर रही है पब्लिक डिपॉजिट, तो वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स को उसको रखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर्स। जो भी डिपॉजिटर्स इन्वेस्ट किया है आपकी कंपनी में, उनका नेम एंड एड्रेस आपको फाइलिंग करना होगा, रजिस्टर करना होगा। सेकेंड पॉइंट इज डेट एंड अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट। किस डेट को कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, किसने डिपॉजिट किया है और उसका अमाउंट क्या है, ये भी रजिस्टर्ड में आपको मेंशन करना होगा।
duration of the deposits and the date on which each deposit is repayable. डिपॉजिट का डेट क्या है, टाइम क्या है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है और ये रीपेबल कब होगा, ये भी आपको रजिस्टर्ड में मेंशन करना होगा. सेकंड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करना होगा आपको कि कितना परसेंट पब्लिक डिपॉजिट पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और वो भी एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस होनी चाहिए. मस्ट वी फॉलो आरबीआई गाइडलाइंस. So last one is any other particulars relating to the deposits. कोई इंफॉर्मेशन है वो भी आपको रजिस्टर में मेंशन करना पड़ेगा. तो ये आपका पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड सारा नॉर्म्स जो एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कमर्शियल पेपर. इट इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट as discussed as previous classes. Commercial paper, it is a part of money market, so it is a short term period. It is related to short term period. So commercial paper is a money market security issued in the commercial paper market by large corporation to obtain funds to meet short-term debt obligation and is backed only by an issuing bank or company promised to pay the face amount on the maturity date specified on the note. So first of all, commercial paper public limited company issue कर सकती है. Short term period, that means ये within 1 year का होगा और ये मनी मार्केट के अंदर का इंस्ट्रूमेंट है. इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ मनी मार्केट. सो जो रेगुलेटरी बॉडी होगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी. इसको रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी टू इश्यू कमर्शियल पेपर्स कंपनीज एक्सेप्ट द बैंकिंग कंपनीज. बैंकिंग कंपनीज को छोड़कर which fulfill the following requirements are permitted to issue CPs in the money market. First, the minimum tangible net worth of the company is rupees 4 crore as per the latest audited balance sheet. Minimum tangible net worth, that means tangible, which is touchable, जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल. तो मिनिमम टेंजिबल नेट वर्थ ऑफ द कंपनी इज रुपीज 4 करोड़ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, लेटेस्ट ऑडिटेड दैट मींस जस्ट प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका जो नेट वर्थ होना चाहिए वो 4 करोड़ रुपीज का होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज द कंपनी हैज फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स of not less than rupees 4 crore. यहां पे वर्किंग कैपिटल, जो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है, वो आपका 4 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, द शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड at one or more stock exchanges. Closely held companies whose share are not listed on any stock exchange are also permitted to issue CPs provided all other conditions are fulfilled. तो जो कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू कर रही है वो या तो एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्टेड होना होगा. स्टॉक एक्सचेंज, दैट मींस सेकेंडरी मार्केट, दैट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, जहां सेल और परचेज होता है. सो closely held companies whose share are not listed on any stock exchange are also permitted to issue. अगर कोई closely held company है और अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं भी है तो भी वो कमर्शियल पेपर को इश्यू कर सकती है. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि अदर कंडीशंस को इसको फुलफिल करना होगा. व्हाट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी? Those company which held 20% at least equity share
this company are also called closely held company. So this concept is related to substantial interested person. So who is substantial interested? So those person who is held 20% at least equity share in any company, who is also called substantially interested in this company. And those companies are called closely held company for this equity shareholder. So next point is the company has obtained minimum credit rating from a credit rating agency, that is CP2 from Credit Rating Information Service of India Limited, and A2 from Investment Information and Credit Rating Agency और PR2 from Credit Analysis and Research. So हमने previously discuss किया था आपसे कि डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपना डिफरेंट रेट प्रोवाइड करती है, रेट का अपना एक परसेप्शन होता है, गुड, वेरी गुड, नॉर्मल, एवरेज, बैड, वेरी बैड, एटसेट्रा. सो जब तक आपका गुड फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होगा, गुड रेटिंग आपको प्रोवाइड नहीं करेगा रेटिंग एजेंसी, तब तक आप कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर पाएंगे. टर्म्स ऑफ कमर्शियल पेपर. द कमर्शियल पेपर में बी issued by the companies on the following terms and conditions. The minimum period, first is the minimum period of maturity should be 15 days. It was reduced from 30 days effective May 25, 1998, and the maximum period less than 1 year. So commercial paper का जो tenure होता है वो short term ही होता है, 1 साल से कम का होगा, है ना. पहले 30 डेज एटलीस्ट रखा गया था, लेकिन इसको 15 डेज कर दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है. तो 15 डेज से लेकर 1 साल से नीचे का जो आपका रहेगा मैच्योरिटी पीरियड, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर का वही पीरियड एक्सेप्टेबल है. द मिनिमम अमाउंट फॉर विच अ सीपी इज टू बी इश्यूड टू अ सिंगल इन्वेस्टर in the primary market should be rupees 25 lakhs and thereafter in multiple of rupees 5 lakhs. तो यहां पे एक लिमिटेशन आपको मेंशन किया गया है जिसको कि फॉलो करना होगा. नेक्स्ट वन इज CPs are to be issued in the form of issuance promissory notes which are freely transferable by endorsement and delivery. So endorsement and delivery आप समझते होंगे. endorsement and delivery कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे के नाम पे, जस्ट लाइक चेक को आप इंडोर्स कर सकते हैं, उस पे क्रॉस चेक, उस पे आप क्रॉसिंग कर सकते हैं, क्रॉसिंग के बाद उसको इंडोर्स कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं किसी दूसरे के नाम पे. तो जो आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है उसको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे के नाम पे. दैट सिस्टम इज कॉल्ड इंडोर्समेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज CPs आर टू बी इश्यूड at a discount to face value. The rate of discount is freely determined by the issuing company and the investors. Independently वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट को आप डिफाइन कर सकते हैं, या तो कंपनी और जो डिपॉजिटर्स है उनके बेस पे, उनके आपसी म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द इशूइंग कंपनी shall bear the dealer's fee, rating agency's fee and other charges. Stamp duty shall also be applicable on CPs. तो यहां पे जो इशूइंग कंपनी है वो डीलर फी, रेटिंग एजेंसी फी जो लगा है एंड अदर चार्जेस, ये सब जो है वो कौन बियर करेगा? तो इशूइंग कंपनी बियर करेगी. सेकेंड वन इज CPs may be issued to any person, corporate body incorporated in India or even unincorporated bodies.
इंडिया में जो भी कॉर्पोरेट बॉडीज है जो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट के थ्रू जो रजिस्टर्ड बॉडीज है वो भी सीपीएच को ले सकती हैं, इशू कर सकती हैं। और यहाँ पे इवन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, दैट मीन्स जो इनकॉर्पोरेट नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी यहाँ पे इशू कर सकते हैं कमर्शियल पेपर्स को। कमर्शियल पेपर्स में बी इशूड टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस, NRIs, only on non-registered basis, and such CPs shall not be transferable. तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियन के थ्रू भी सीपीएच को इशू किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, एक रिस्ट्रिक्शंस है कि वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। दैट मींस वो इंडोर्स आप उसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर विल नॉट बी अंडररिटेन और co-accepted by any individual or institution। यहां पे किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपका कमर्शियल पेपर को अंडररिटेन या को एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी नो ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट। ग्रेस पीरियड मींस आपको जो 2 डेज 3 डेज जो आपको रिलीफ दिया जाता है, वो वहां पे कोई भी ग्रेस पीरियड अवेलेबल नहीं है। There will be no grace period for payment. The holder of the CPs shall present the instrument for payment to the issuing company. So other securities, intercorporate loans, bonds and debentures, factoring of receivable. ये other securities में आपको पढ़ना है intercorporate loans। एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट को लोन प्रोवाइड कर सकती है, लोन उससे ले सकती है इन शॉर्ट पीरियड। Whenever company require a loan, they take loan from other institution or bodies। तो इंटर कॉर्पोरेट लोन इसी को बोलते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे किसी कॉर्पोरेट बॉडी से लोन ले सकता है, दैट इज कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। सेकंड वन इज बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। सो बॉन्ड्स इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू हेल्प टू इशू to help to raise the capital of the company. Bonds are instruments to help to raise the capital of the company. Basically bonds जो है गवर्नमेंट कंपनी की, it is issued by the government company, और अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के थ्रू भी कभी-कभी बॉन्ड इशू किया गया है। बॉन्ड that means its nature similarity to debenture. So debenture, it is also a debt instrument to help to raise the capital of the company. So types of debenture: redeemable, irredeemable debenture, convertible, non-convertible debenture, secured, unsecured debenture. तो फर्स्ट redeemable debenture, जिसको एक सर्टेन पीरियड के बाद रिडीम कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। दैट मींस इट हैज अ मैच्योरिटी पीरियड, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर, इट हैज नॉट मैच्योरिटी पीरियड, दैट मींस एक बार इश्यू हुआ, वो आपको रीपेमेंट आपको नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। थ्रू आउट द लाइफ वो लॉक इन पीरियड में चला गया आपका फंड। थर्ड, कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक सर्टेन पीरियड के बाद आपका डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्जन हो जाएगा। एक ऑप्शन रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, यहां पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा कि आप डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो आपका डिवेंचर है वो डिवेंचर ही रहेगा, वो कन्वर्जन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सिक्योर्ड डिवेंचर, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आपके पास प्रायोरिटी राइट रहेगा कि एसेट, कंपनी के सारे एसेट्स को सेल आउट कर दिया जाएगा।
और सेल आउट करने के बाद सबसे पहले आपको पेमेंट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिवेंचर। नेक्स्ट वन इज अनसिक्योर्ड डिवेंचर। तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आपके पास प्रायोरिटी राइट अवेलेबल नहीं रहेगा कि आप उसको पे करेंगे सबसे फर्स्टली, आपको सबसे लास्ट में पेमेंट होगा, वहां तक कंपनी के पास फंड अवेलेबल रहता ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टोरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। इट इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, फैक्टोरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। Whenever you sell on credit basis, वहां पे डेटर्स जनरेट होता है। अब डेटर्स जनरेट हुआ है तो डेटर्स जनरेट एक टर्म एंड कंडीशन के थ्रू आप उसको क्रेडिट सेल किए हैं कि आप उतने दिनों के अंदर आप उसे दे देंगे, पे कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर नंबर ऑफ डेटर्स लिस्ट बहुत ज्यादा होते हैं और वो उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि डेटर से कब पैसे को कलेक्ट करना है, कब नहीं करना है। सो कंपनी एक फैक्टोरिंग कंपनी को अपॉइंट करती है। फैक्टोरिंग कंपनी बेसिकली वो डेटर से कैश को कलेक्ट करके और कंपनी को ट्रांसफर कर देती है और इसके लिए कंपनी उसे कुछ कमीशन देती है। इसमें आप देखेंगे कि फैक्टरिंग का टाइप्स होता है, रिकोर्स फैक्टरिंग, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, जिसमें डेटर अगर बैड डेट्स में कन्वर्ट होता है तो उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर होगी या फैक्टरिंग के ऊपर होगी, दैट्स मैटर। सो फैक्टरिंग एक इंटरमीडियरीज है जो डेटर से कैश को कलेक्ट करता है और कंपनी को पैसे प्रोवाइड कर देता है और कंपनी उसके लिए उसे एक सर्टेन कुछ अमाउंट परसेंटेज पे करती है। सो फैक्ट बेनिफिट क्या हुआ, एक डेटर से कैश कलेक्शन तेजी से होगा क्योंकि कंपनी के पास उतनी मशीनरी अवेलेबल नहीं होती है जिससे कि वो आपको सभी डेटर से जाकर कैश कलेक्शन कर सके, कैश को ले सके। तो यहां हम अब आई एम गोइंग टू डिस्कस ब्लॉक 4, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इश्यूज एंड प्रैक्टिसेस। एंड दिस ब्लॉक contain 4 unit. Unit first is that is unit 12, working capital management in SMEs, small medium enterprises. Unit 13, working capital management in large companies. Unit 14, working capital management in MNCs, multinational companies or transnational companies, TNCs. And unit 15, case studies. So I'm going to discuss unit 12, working capital management is in SMEs. So objective of this units are, the objectives of this unit are to familiarize you first with the scope and functions of financial management. Second one is role and contribution of SMEs in India. Third one is working capital management for small businesses organizations. And last one is managing working capital in a small and medium enterprises. So I had discussed in previous class working capital management requirement, working capital meaning, working capital management, its components, constituents, these all are discussed. The structure of these units are introduction, a small and medium enterprises versus large companies, role of a small and medium enterprises in India, working capital management for SMEs, different features, working capital cycle. I have also discussed working capital cycle. Objective of working capital management in SMEs, managing working capital, determinants of working capital in SMEs,
components of working capital management, effective working capital management for SMEs, a strategic planning, a strengthened working capital performance. So these all are a structure of this unit. Mostly topic I have discussed in previous classes. Difference बस ये है कि जनरल बिजनेस के केस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को किस तरह से किया जाता है और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के केस में किस तरह से किया जाएगा। बाकी जो भी आपको कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस क्लास में आपको प्रोवाइड किया गया है सेम वही रहता है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के केस में बस ये होता है कि सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल को थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि स्मॉल इंटरप्राइजेज को शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोई करना नहीं चाहता है, वहां पे रिक्वायरमेंट रहता है बट वहां पे कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस उनके लिए इफेक्टिव नहीं है। अब गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को भी फंड हम प्रोवाइड करेंगे, आप आगे बढ़िए, आप न्यू कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, हम आपको फंड प्रोवाइड करेंगे। सो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा कि आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को इसमें किस तरह से आप ऑपरेट करेंगे। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल साइकिल के थ्रू मिलेगा। अब स्मॉल इंटरप्राइजेज है या मीडियम इंटरप्राइजेज है तो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर कि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग है या रिटेलिंग है या ट्रेडिंग कंपनी है। मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे कि अगर रिटेलिंग कंपनी है तो वहां वर्किंग कैपिटल का आपका रिक्वायरमेंट कम होगा। लाइक आप फिनिश्ड गुड्स को ही आप परचेज करते हैं और उसी को फिर आप सेल कर देते हैं, दैट मीन्स जो पीरियड है बीच का जो ड्यूरेशन है वो काफी कम हो जाता है, जिसके कारण वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज आपको कम दिखेगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है देन इसका जो साइकिल है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बिकॉज कि आप सबसे पहले वर्किंग कैपिटल को रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करेंगे, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करने के बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद वो फिनिश्ड गुड्स में जाएगा, आउटपुट निकलेगा वहां प्रोडक्ट का, और आउटपुट निकलने के बाद आप डेटर को सेल करते हैं। फिर भी डेटर आपके यहां से जब गुड्स को ले जाता है वो भी टर्म एंड कंडीशन के बेस पे ले जाता है, वो भी 2 महीने 3 महीने के बाद आपको पैसा देगा, तो दैट मीन्स लॉक इन पीरियड आपका उस समय तक ब्लॉक रहेगा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो काफी लेंदी होगा। अगर आपका ट्रेडिंग कंसर्न है तो वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा कम होगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम को डिफाइन किया गया है। दैट इज फर्स्ट माइक्रो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन ₹1 crore and annual turnover not more than ₹5 crore. So this is the norms for becoming micro enterprises. प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर जो है आपका 5 करोड़ से कम होना चाहिए, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 करोड़। So second, small enterprises. Investment in plant and machinery or equipment not more than ₹10 crore and annual turnover not more than ₹50 crore. स्मॉल इंटरप्राइजेस होने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके यहाँ प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से नीचे है और आपका जो एनुअली टर्नओवर है, दैट मींस एनुअली जो सेल्स है आपका वो 50 करोड़ से नीचे है, 50 करोड़ से ऊपर नहीं है, तभी आप स्मॉल इंटरप्राइजेस में आ पाएंगे, स्मॉल इंटरप्राइजेस को डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट है मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन ₹50 crore
यानी 50 करोड़ से ज्यादा आपके प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन ₹250 करोड़। जो सेल है, जो आपका एनुअली टर्नओवर है, वो 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप मीडियम के कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे, बल्कि आपको लार्ज कंपनी की ओर, लार्ज कंपनी ट्रीट कर लेगी गवर्नमेंट। So many big businesses that at first sight may appear profitable often are forced to shut down due to their inability to handle short-term obligations at times when they fall due. Hence, successful management or maneuvering of working capital is a necessity for a business to remain in existence. So working capital management हर बिजनेस के लिए, हर इंटरप्राइजेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट वर्किंग कैपिटल कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ठीक से पता करना होगा और सोर्सेस पे ध्यान देना होगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग पीरियड शॉर्टेज ना हो। अगर कहीं पे शॉर्ट अगर हो रहा है, देन आप वहां पे सोर्सेस का इंतजाम कर लीजिए कि कहां से कैश को आप जनरेट कीजिएगा शॉर्ट टर्म के लिए। एंड अदर स्लाइड इज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ओवर ट्रेडिंग। This is a new concept, over trading. Over trading is one of the issues that many businesses, particularly a small and medium sized businesses, face. Over trading occurs when a firm expands too quickly and does not have enough long term funds to support the increasing asset level. यहां पे आप एक्सपेंड तो कर दिए हैं, अपने बिजनेस को काफी तेजी से एक्सपेंड कर दिया है, बट आपके पास लॉन्ग टर्म फंड अवेलेबल नहीं है, इनफ लॉन्ग टर्म अवेलेबल फंड नहीं है जो आपके एसेट लेवल को इंक्रीज कर पाए। तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। Many prosperous or growing businesses may be forced to close due to liquidity problems. आप एक्सपेंड तो कर लेते हैं, बहुत बड़े बिजनेस को बहुत आगे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं, बट होता यह है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो आपकी है वो आपके पास अवेलेबल रहती नहीं है, जिसके कारण आपकी कंपनी लिक्विडेशन स्टेज पे चली जाती है, आपकी कंपनी को बंद करना पड़ जाता है। ओवर ट्रेडिंग कैन कॉज प्रॉब्लम फॉर इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कंपनी जस्ट स्ट्राइविंग टू एक्सपेंड क्विकली। Indeed, any company looking to expand should factor in the need for long-term working capital investments throughout the initial decision-making process. So, determinants of working capital management in SMEs, small medium enterprises. There are two factors available in determinants of working capital management in SMEs. First is called firm-specific factor. It includes firm age, firm size, financial leverage, and foreign sales. Next factors, owner-specific factors. Gender of manager, education of manager, experience of manager. So firm-specific factor, that is firm age. आपके फर्म की क्या एज है, फर्म का ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट कितनी होगी वर्किंग कैपिटल, ये डिपेंड करता है कि फर्म का एज क्या है। फर्म साइज, फर्म जितनी बड़ी होगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी, फर्म जितना छोटा होगा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट उतना ही छोटा होगा। फाइनेंशियल लिवरेज, तो फाइनेंशियल लिवरेज is that leverage which is incurred through fixed interest capital. अगर आप अपनी कंपनी के लिए डिवेंचर या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने कैपिटल रेज किया है, डेट इंस्ट्रूमेंट दैट मींस इट हैज अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेफिनिट पीरियड।
सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें फिक्स्ड है, आपको यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट वेदर योर कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट और नॉट। सो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप डेट कैपिटल ज्यादा लेंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज काफी हाई हो जाएगा। दैट मींस पे करने का, इंटरेस्ट पे करने का जो ऑब्लिगेशन है काफी हाई हो जाएगा। फॉरेन सेल, आप एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कितना कर रहे हैं, बियॉन्ड द बॉर्डर ट्रेडिंग कितना कर रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर जितना ज्यादा बियॉन्ड द बॉर्डर ट्रेडिंग आप करेंगे, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा होगा। सो नेक्स्ट topic, components of working capital management. I have already discussed in previous class components of working capital management. First, inventory management, potential consequence of a stock out, economic order quantity, just in time inventory policies. So economic order quantity is that quantity where ordering cost or carrying cost will be minimized. It is calculated as a square root 2as by c, where a is equal to annual consumptions, s is equal to ordering cost per order, and c stands for carrying cost per annum. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक टेक्निक है जो आपको बताएगा कि आप नंबर ऑफ ऑर्डर कितना प्लेस करें जिससे कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज्ड हो जाए। ठीक उसी तरह से जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी पॉलिसीज है। तो जस्ट इन टाइम दैट इज जापानीज टेक्निक, इन्वेंट इसका जापान में हुआ था, और एट ए टाइम मैनेजमेंट भी इसको बोलते हैं कि स्टॉक को होल्ड करना नहीं है, बल्कि आप स्टॉक जब भी आपको ऑर्डर मिलता है तो आप उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप स्टॉक को लाइए। पहले से स्टॉक रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्टॉक को मेंटेन नहीं कीजिए, स्टोरेज कैपेसिटी आपका ब्लॉक नहीं होगा, स्टोरेज कॉस्ट आपको नहीं देना होगा। और हमने बताया था कि जापान ने इस सिस्टम को अप्लाई करके बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस किया था, एंड देन इसके जस्ट बाद आपको यूएसए ने इसको तुरंत फॉलो अप किया, एंड आज ऑल ओवर इंडिया में जस्ट इन टाइम टेक्निक का यूज हो रहा है। And then credit management, influence, receivables collection system, protection against bad debts. जो डेटर आपके यहाँ से पैसे उधार लेके गए हैं वो मतलब भाग ना जाए, वो चले ना जाए, बैड डेट्स में ना कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए आपको प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है। रिसीवेबल्स कलेक्शन सिस्टम आपके पास अच्छा होना चाहिए ताकि आप टाइम टू टाइम डेटर से कलेक्शन कर पाए। एंड देन लास्ट इज कैश मैनेजमेंट। Cash management is very important management for any type of business because working capital include cash. So effective working capital management for SMEs, reduce inventory, enhance forecast accuracy and demand planning, improve delivery and logistic concepts, optimize production processes, variance management, secure good credit terms, avoidance of early payments, payment conditions, back-to-back agreements, etc. Next unit is 13, working capital management in large companies. So the objective of these units are with the financing option of large and small businesses, differences in a small and large firms working capital management, factors affecting the working capital needs of large companies. So देखिए सारे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के हर एक कंपनी में एक ही जैसा आपको मिलेगा सिस्टम। आपको एसएमएस और वर्किंग एमएनसीज के बारे में थोड़ा बहुत डिफर होता है, लेकिन जो सिस्टम है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का वो सभी में एक ही जैसा एप्लीकेबल है। So working capital management is one of the most critical aspect of day-to-day business management. Working capital management is a frictional area of finance that encompasses the firm's entire current account. So working capital management in MNC's objective, understand the international environment under which MNCs carry out their operations, develop an idea as to diverse risks associated with the management of working capital, know the issues involved in the transfer of funds from the host country to the home country and vice versa.
examine the policy and practices followed by the MNCs in managing individual components of working capital, gain an understanding of the diverse source of working capital available in MNCs. The structure of this study as introduction, special issues, cash management, receivable management, inventory management, these all are same for previous organization. Next unit is case study. Objective of this unit is know how the various components of working capital are managed by the existing companies. Get in touch with the norms of working capital management in terms of policy and practice. Understand how companies would be chopping and mobilizing funds for financing working capital. And अभी का टाइम तो खत्म हो गया है और मैं कंक्लूड करना चाहता हूं इसको कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एमएनसीज हो, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, सभी में एक जैसा ही रहता है। बस थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का जो है डिफरेंस होता है, बल्कि कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सारे मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल है और उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने एक छोटे या स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। सो थैंक यू।